السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم اپنا نیکسٹ ٹاپک شروع کریں گے جو ہے جنرل محمد ضیاء الحق کے بارے میں۔ بڑھتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ اس سے پہلے آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹس دینا مت بھولیں اور بیل آئیکن پریس کرنا بھی مت بھولیں۔ جنرل محمد ضیاء الحق کے دور حکومت پڑھنے سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ کون تھے۔ وہ اس وقت کے آرمی چیف تھے جب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی۔ تو اب جب ہم سبق کی جانب پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کیا ایسی وجوہات تھیں کہ اس وقت کے آرمی چیف کو جو ہے صدر مملکت کا عہدہ سنبھالنا پڑا۔ یہ تو خیر ہو گئی آپ کے لیے جنرل نالج کی انفارمیشن۔ اب ہم آتے ہیں سبق کی طرف۔ ذوالفقار علی بھٹو نے قبل از وقت انتخابات کرانے کا اعلان کیا اور مارچ 1977 میں انتخابات منعقد کرائے۔ قبل از وقت یعنی وقت سے پہلے انہوں نے مارچ 1977 میں انتخابات جو ہیں ان کا انعقاد کرایا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنے کے لیے حزب اختلاف کی 9 جماعتوں نے متحد ہو کر پاکستان قومی اتحاد PNA تشکیل دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی ہے، آپ کو معلوم ہے، آپ یہ پڑھ چکے ہیں پہلے ٹاپک میں، تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے 9 جماعتیں جو ہیں وہ اکٹھی ہو گئیں اور وہ جو ہے نا انہوں نے پاکستان قومی اتحاد PNA یعنی پاکستان نیشنل الائنس تشکیل دیا یا بنایا۔ ان انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیابی حاصل ہوئی، مگر پاکستان قومی اتحاد نے پاکستان پیپلز پارٹی پر دھاندلی کا الزام لگا کر احتجاج تحریک شروع کر دی۔ احتجاجی تحریک شروع کر دی۔ جیسے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جو ذوالفقار علی بھٹو تھے ان کی حکومت میں اور عوام میں مقبولیت ان کے اصلاحات کی وجہ سے، ان کے کاموں کی وجہ سے بڑھ چکی تھی۔ اس لیے جب دوسری بار بھی جب انتخابات ہوئے تو پیپلز پارٹی کو پھر سے جو ہے وہ کامیابی ہوئی، لیکن جو پاکستان قومی اتحاد تھا اس نے یہ کہا کہ جو ہے انتخابات میں دھاندلی یا کرپشن ہوئی ہے، اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ احتجاجی تحریک شروع کر دی۔ ذوالفقار علی بھٹو اور پاکستان قومی اتحاد کے درمیان مسئلے کے حل کے لیے مذاکرات شروع ہوئے، یعنی بات چیت شروع ہوئی۔ ابھی یہ مذاکرات جاری ہی تھے کہ جنرل محمد ضیاء الحق نے مارشل لا نافذ کر دیا۔ مارشل لا کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی آرمی چیف ملک کے انتظام کو اپنی کسٹڈی میں لے تو وہ جو آ کے اس پہ یعنی جو انتظام سنبھالتا ہے اس کے لیے وہ جو کام کرتا ہے اس کو ہم یا اصطلاح جو ہے وہ مارشل لا کہی جاتی ہے۔ نافذ کر دیا یعنی وہ انہوں نے اس وقت اس کا نفاذ کر دیا۔ تمام سیاسی جماعتوں پر پابندی عائد کر دی گئی، یعنی پھر مارشل لا میں یہ ہوتی ہے کہ سب ہر چیز پہ پابندی ہوتی ہے، جمہوری حکومت کی طرح کا سلسلہ نہیں ہوتا ہے اس میں پھر وہی ہوتا ہے جو مارشل لا نافذ کرنے والا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کہتا ہے یا کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے تمام سیاسی جماعتوں پر انہوں نے کیا کیا کہ پابندی عائد کر دی۔ ذوالفقار علی بھٹو کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس طرح سیاسی منظرنامہ یکسر تبدیل ہو گیا، یعنی جو سیاسی منظرنامہ چل رہا تھا وہ ایک دم سے ہی بدل گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نواب محمد احمد خان قتل کیس میں سزائے موت دے دی گئی اور بھٹو کو جو ہے 4 اپریل 1979 کو انہوں نے قتل کیس میں جو ہے سزائے موت دے دی تھی۔ اور جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا کے ذریعے سے اقتدار حاصل کر کے قوم سے اپنے خطاب میں ملک میں 90 روز کے اندر انتخابات کرانے کا وعدہ کیا۔ اب جنرل ضیاء الحق نے کیا کیا کہ جیسے ہی وہ آئے اقتدار میں تو انہوں نے قوم سے اپنا یہ خطاب کیا جس میں انہوں نے کہا کہ وہ 90 روز کے اندر عام انتخابات کرائیں گے، مگر مختلف وجوہات کی بنا پر انتخابات ملتوی کیے جاتے رہے، لیکن ایسی وجوہات بنتی رہیں جس کی وجہ سے جو انتخاب تھے وہ
कैंसल होते रहे। आखिरकार 1985 में गैर जमाती बुनियादों पर इंतखाबात कराए गए और सुबह सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद खान जुनेजो को वज़ीर आज़म नामज़द किया गया। तो आखिरकार 1985 में जो है मुख्तलिफ जो जमातें थी, यानी उस वक्त ये वाज़ेह नहीं किया उन्होंने, यानी पीपल्स पार्टी जो थी या पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बग़ैर किसी पार्टी बुनियादों पे उन्होंने वो इंतखाब कराए और जो सुबह सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद खान जुनेजो थे उनको उन्होंने वज़ीर आज़म बना दिया। मोहम्मद खान जुनेजो अगरचे गैर जमाती असम्बली के रुकन थे, मगर करीबन 2 माह के अंदर उन्होंने अपने हामियों की मदद से मुस्लिम लीग के नाम से सियासी जमात कायम करके मुल्क में जमाती सियासी निज़ाम बहाल कर दिया। यानी जब मोहम्मद खान जुनेजो आए तो उन्होंने जो है तकरीबन 2 माह के अंदर अंदर जो अपने जो उनके यानी उनके साथ देने वाले थे, हामी थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने मुस्लिम लीग के नाम से सियासी जमात कायम की। मुस्लिम लीग क्योंकि पॉपुलर थी, जब हमारा यहाँ पे मुल्क बना था तो उस वक्त आपको पता है मुस्लिम लीग थी, तो इस नाम से उन्होंने जो है ना मुल्क में जमाती सियासी निज़ाम बहाल कर दिया। यानी दोबारा से जो है पार्टी सिस्टम आ गया आपका। 1985 में आईन पाकिस्तान, 1973 में 8वीं तरमीम की गई। इस तरमीम के रूह से सदर पाकिस्तान को कई इजाफी इख्तियारात और आइनी ताकत हासिल हो गई। पाकिस्तान का जो हमारा आइन था उसमें इख्तियारात हासिल करने के लिए ज़्यादा इजाफी इख्तियारात और आइनी ताकत सदर ने हासिल की। ये इख्तियारात आइन पाकिस्तान के आर्टिकल 58 में शामिल हुए, जिसके तहत सदर पाकिस्तान को ये इख्तियार हासिल था कि वह पाकिस्तान की कौमी असम्बली को तहलील कर सकता था, जबकि सेनेट को तहलील करने का कोई इख्तियार ना था। अब जो इस आर्टिकल में उन्होंने ये क्या किया, ये वाज़ेह किया कि जो पाकिस्तान की कौमी असम्बली नेशनल असम्बली है, यानी जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जहाँ पे हमारे, उसको तहलील या ख़त्म कर सकता था सदर ममलिकत, जबकि पहले ये सेनेट को हासिल था इख्तियार। इससे पहले तरमीम से पहले ये इख्तियार सेनेट को हासिल था, तो सेनेट जो है उसका इख्तियार वापस ले लिया गया और उसको इख्तियार नहीं था कि वो उसको कौमी असम्बली को ख़त्म करे। आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 58(2)B की रूह से सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म और उसकी काबीना को भी फारिग कर सकता था। यानी सदर ने अपने इख्तियारात में इतना इजाफा कर लिया था कि वो वज़ीर आज़म और उसकी काबीना, यानी जो उसके साथ काम करने वाली जमात होती है हुकूमत में, उसको भी फारिग कर सकता था। मोहम्मद खान जुनेजो चूँकि जमहूरी मिजाज के आदमी थे, इसलिए जनरल ज़िया-उल हक के साथ उनकी बहुत ज़्यादा हम आहंगी ना हो सकी। यानी मोहम्मद खान जुनेजो जो हैं वो जो हैं क्या थे, वो भी जो हैं आपके डेमोक्रेसी की तरफ थे, तो इसलिए जनरल ज़िया-उल हक के साथ उनकी बहुत ज़्यादा हम आहंगी यानी ताल्लुक़ ना बढ़ सका। दोनों के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए, जिसकी बिना पर जनरल मोहम्मद ज़िया-उल हक ने 29 मई 1988 को आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 58(2)B के तहत इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए मोहम्मद खान जुनेजो की हुकूमत का खात्मा कर दिया और कौमी और सूबाई असम्बली तहलील कर दी। यानी जो तरमीम हुई थी उसको उन्होंने 1985 में तरमीम हो रही है और 29 मई 1988 को उन्होंने क्या किया है कि मोहम्मद खान की जुनेजो की हुकूमत को ख़त्म कर दिया और कौमी यानी नेशनल और प्रोविंशियल आपकी जो असम्बलीज थी उनको उन्होंने तहलील कर दिया या ख़त्म कर दिया। अब इसके साथ साथ जब वो उन्होंने जनरल मोहम्मद ज़िया-उल हक साहब ने बहुत ज़्यादा अपने पास इख्तियारात हासिल कर लिए थे, तो इसके साथ साथ उन्होंने मुल्क में कई इस्लाहात भी की थी। इन इस्लाहात का जायज़ा हम लेते हैं। तो हम देखते हैं जो उन्होंने उस वक्त इस्लाहात की जनरल मोहम्मद ज़िया-उल हक साहब ने अपने दौरे हुकूमत में। नंबर 1 पे उन्होंने जो सनती इस्लाहात की थी, नंबर 2 पे उन्होंने जो ज़रई इस्लाहात की थी, नंबर 3 पे तालीमी इस्लाहात की थी, नंबर 4 पे उन्होंने
सेहत से मुतालिक इस्लाहात की थी नंबर 5 पे, माशी इस्लाहात नंबर 6 पे, माशरती इस्लाहात नंबर 7 पे, आइनी इस्लाहात नंबर 8 पे, इंतज़ामी इस्लाहात। तो अब हम बढ़ते हैं तफसीलन इन इस्लाहात की तरफ। तो सबसे पहले इसमें जो है वो है सनती इस्लाहात, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पॉलिसियाँ तर्क कर दी और बहुत सी सनतें उनके मालकान को वापस कर दी। इनमें कॉटन फैक्ट्रियाँ, चावल और आटे की मिलें वगैरह नुमायाँ थी। यानी कि ज़ियाउल हक साहब ने आते ही जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पॉलिसियाँ थी उनको ख़त्म कर दिया या छोड़ दिया और बहुत सी सनतें उनके मालकान को वापस कर दी। हमने भुट्टो दौर में पढ़ा था कि भुट्टो साहब ने जो है बहुत सारी जो आपकी मिलें थी वो उन्होंने हुकूमत के अंडर में कर ली थी। लेकिन ज़ियाउल हक साहब ने क्या किया था कि इनको जो है दोबारा उनके मालकान को वापस कर दिया था, यानी एक तरह से उनको फिर प्राइवेटाइज कर दिया था। सरमायाकारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया, बड़ी सनतें ज़्यादातर प्राइवेट शोबे में लगाई गईं, मुल्की बरामदात में इजाफा हुआ। अब जो इन्वेस्टर थे, जो सरमायाकार थे, उनको जो है ना उन्होंने क्या किया, तहफ़्फ़ुज़ दिया, यानी उनको बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है सहूलतें दी और बड़ी सनतें ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर में लगी और मुल्की बरामदात में भी इजाफा हुआ। अब आगे हम बढ़ते हैं तो है ज़रई इस्लाहात। ज़रई इस्लाहात में जो है हमारे पास ज़राअत के शोबे को तरक्की दी गई। ज़रई पैदावार पर उशर नाफिज कर दिया गया जिसकी शरह बारानी इलाकों में 10% जबकि नहरी इलाकों में 5% थी। अब जो है ज़राअत के एग्रीकल्चर के शोबे में भी हमारी जो है वो तरक्की हुई और जो उशर आपको पता है कि जो है जैसे आपको पता है कि उशर से मुराद होती है पैदावार की एक मखसूस हद का 10वां हिस्सा और वो जो है इस्लामी लिहाज से हमारा जो है इसको मुकर्रर किया जाता है। इस तरह हासिल शुदा आमदनी से गरीब अफराद की मदद की जाती है। नेक्स्ट है हमारी तालीमी इस्लाहात, एजुकेशनल रिफॉर्म्स। इस्लामियात और मुताला पाकिस्तान के मज़ामीन को ग्रेजुएशन तक लाजमी करार दिया गया, यानी BA तक लाजमी हो गई है। ख़वातीन के लिए अलग यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए इक़दाम किए गए। इस्लामी नज़रियाती कौंसल की तश्कील नौ की गई। अखबारात, रेडियो और टेलीविज़न पर इस्लामी शाइर की तरवीज का काम किया गया। इस्लामी शाइर यानी इस्लामी तरीक़ों की तरवीज यानी उनकी तरक्की का काम किया गया या फैलाव का या कोशिश काम किया गया। गलतियों से पाक कुरान मजीद की तबाअत का बंदोबस्त किया गया। मुल्क में ख़वानदगी की शरह में इजाफे के लिए तालीमी तरक्की और तालीम बालगा के प्रोग्राम शुरू किए गए। ख़वानदगी की शरह यानी पढ़े लिखे जो अफराद थे उनकी शरह को और तालीम बालगा का आपको पता है जो बालिग अफराद की तालीम के प्रोग्राम्स होते हैं उसको भी शामिल किया गया इनकी एजुकेशनल इस्लाहात में। अब हम बढ़ते हैं आगे सेहत से मुतालिक इस्लाहात, हेल्थ रिफॉर्म्स। मुल्क में सेहत की सहूलियात की फराहमी के लिए प्रोग्राम शुरू किया जिसमें देही इलाकों में बुनियादी सेहत के मराकज़ के अलावा लेडी हेल्थ वर्कर्स के ज़रिए से तिब्बी सहूलियात की फराहमी का आगाज़ किया गया, यानी सहूलियात जो है मुल्क में सेहत की उसमें इम्प्रूवमेंट लाई गई और जो हमारे देहात के इलाके थे उसमें बुनियादी मरकज़ सेहत के अलावा लेडी हेल्थ वर्कर को भी अपॉइंट किया गया ताकि मुल्क में जो सेहत का मेयार है उसको बेहतर बनाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा माशी इस्लाहात, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। 1980 से ज़कात का निज़ाम सरकारी सतह पर नाफिज कर दिया गया था। यकम रमज़ान मुबारक को बैंक के मुसलमान खातेदारों के अकाउंट से 2.5% सालाना के हिसाब से ज़कात काटी जाने लगी। सूद से पाक बैंकारी का निज़ाम कायम किया गया। तमाम बैंकों में नफ़ा और नुकसान में शराकत की बुनियाद पर अकाउंट खोले गए। माशरती इस्लाहात, सोशल रिफॉर्म्स यानी माशरे में क्या तरक्की हुई।
1977 से 1988 के दौरान में जनरल ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान में इस्लामी माशरे के क़याम के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए। करारदाद मकासद जो कि क़ब्ल अज़ीम 1956 और 1962 के दसातीर के दिबाचों का हिस्सा थी, यानी उनके स्टार्ट का जो पार्ट थी उसे बाकायदा तौर पर दस्तूर उनमें का हिस्सा बना दिया गया। मुल्क में शरई अदालतें कायम की गईं। गैर इस्लामी कवानीन को तेज़ी से इस्लामी कवानीन से बदलने का अमल शुरू किया गया। शराब नोशी, चोरी और दीगर जराइम के खात्मे के लिए इस्लामी सज़ाएँ नाफिज की गईं। मंशियात के खात्मे के लिए सदारती अहकामात जारी किए गए। मुल्क में नमाज के निज़ाम को बाकायदा बनाने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए गए, यानी कई इक़दाम किए गए या स्टेप उठाए गए। अलगाज़ मुल्क में इस्लामी माहौल के क़याम के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई। आइनी इस्लाहात की जानिब जब हम पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि जनरल ज़ियाउल हक के दौर में पाकिस्तान के आइन में दर्ज झैल तरामीम हुई, तब्दीलियाँ हुई। 8वीं तरमीम 1985। 8वीं आइनी तरमीम के तहत आइंदा से सदर मुमलिकत का इंतखाब पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों और चारों सूबाई असम्बलियों पर मुश्तमिल इंतखाबी इदारा करेगा, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था इलेक्टोरल कॉलेज। तरामीम के बाद सदर मुमलिकत को गैर मामूली इख्तियारात हासिल हो गए और वज़ीर आज़म की हैसियत सानवी हो गई। सेनेट के अरकान की मुद्दत 6 साल मुकर्रर की गई। तरामीम के बाद यानी तब्दीली के बाद सदर मुमलिकत को बहुत ज़्यादा इख्तियारात हासिल हो गए और जो वज़ीर आज़म था उसकी हैसियत सानवी हो गई। हालांकि इससे पहले आइन में वज़ीर आज़म की हैसियत जो है वो ज़्यादा थी जमहूरी हुकूमत में, और सदर मुमलिकत उन तमाम बातों पर या उन तमाम कवानीन पर जो है दस्तखत करता था। और हमने भुट्टो दौरे हुकूमत में देखा था कि वज़ीर आज़म जो है वो सदर को मशवरा भी दे सकता था, लेकिन अब इधर जो है 8वीं तरमीम में सदर मुमलिकत को बहुत ज़्यादा इख्तियारात मिल गए थे। 9वीं तरमीम 1985 आइन के आर्टिकल 2 में इन अल्फाज का इजाफ़ा किया गया कि इस्लामी अहकामात जो कुरान सुन्नत से माखूज़ हों, आला तरीन कानून और रहनुमाई का मंबा होंगे। इस्लामी अहकामात जो कुरान सुन्नत से माखूज़ होंगे, अखज़ होंगे, निकाले जाएंगे, वो जो है आला तरीन कानून और रहनुमाई का मंबा होंगे, यानी वो जो है मरकज़ होंगे, मजमुआ होंगे। अब 10वीं तरमीम 1987 में 10वीं आइनी तरमीम की रूह से कौमी असम्बली और सेनेट के लिए वर्किंग के कम अज़ कम 130 दिन मुकर्रर किए गए। आपके कौमी असम्बली और सेनेट के वर्किंग यानी उनके काम करने के दिन जो हैं वो 130 मुकर्रर किए गए थे उस वक्त। अब नेक्स्ट है आपके इंतज़ामी इस्लाहात। इसमें जो है 1979 में रूसी अफवाज अफ़गानिस्तान में दाखिल हो गई, यानी ये हमारे पास आलमी तनाजुर के हवाले से आ रहे हैं उनके इंतज़ामी इस्लाहात। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने बड़े एतमाद और हौसले के साथ दो टोक पॉलिसी अपनाई और रूसी फ़ौज की मदाखलत के खिलाफ डट गए। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब ने जो है ना बहुत कॉन्फिडेंस और हौसले के साथ जो है उन्होंने क्या किया कि रूसी अफवाज की मुदाखलत या जो उनकी इंटरफेरेंस थी उसके खिलाफ वो डट गया। अफ़गानिस्तान के अवाम रूस के हमले के खिलाफ उठ खड़े हुए और मज़ाहमत शुरू कर दी, यानी अफ़गानिस्तान के अवाम भी रूस के हमले के खिलाफ उठ खड़े हुए और उन्होंने भी जो है उनके खिलाफ रेजिस्टेंस शुरू कर दी। ये हुकूमत पाकिस्तान की अखलाकी मदद के सबब अफ़गान मुजाहिदीन के हौसले बुलंद हो गए। मुजाहिदीन ने हर महाज पर रूसी अफवाज को इबरतनाक शिकस्त दी। 1986 तक रूस बिल्कुल मायूस हो गया, यानी 1979 से 1986 तक वो इधर जो है करते रहे जो है वो अफ़गानिस्तान में दाखिल होने की कोशिश करते रहे, अटैम्प्ट करते रहे।
जब उसे अपनी शिकस्त साफ नजर आने लगी तो मुज़ाकरात की मेज़ पर आ गया। चुनाचे जंग बंदी के लिए अप्रैल 1988 में अमेरिका और रूस के दरमियान जेनेवा स्विट्ज़रलैंड का जो शहर है में एक मुआहदा तय पाया। पाकिस्तान भी इस मुआहदे का हिस्सा था। रूस ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली और उसने वादे के मुताबिक 15 फरवरी 1999 को अपनी फौजें अफगानिस्तान से वापस बुला लीं। अफगानिस्तान के ख़राब हालात की वजह से लाखों अफगान महाजरीन हिजरत करके पाकिस्तान चले आए। पाकिस्तान में अफगान महाजरीन के सैकड़ों कैंप कायम किए गए। दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान ताल्लुकात मजबूत हुए। कामयाब अफगानी पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान को आलमी सतह पर बहुत पजीराई मिली, शोहरत मिली। जमहूरी रियासतों के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए। पाक अफगान सफारती ताल्लुकात में भी नुमायाँ बेहतरी आई। अफगानिस्तान पर रूसी तसल्लुत और मज़ालिम की मजम्मत करने पर पाकिस्तान को दुनिया भर में ख़ुसूसी मकाम हासिल हुआ। अफगान मसले पर जनरल मोहम्मद ज़िया हक़ की खिदमात को आलमी सतह पर सराहा गया। उन्होंने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद से मुतल्लिक़ सरगर्मियों में भरपूर शिरकत की। इस्लामी कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदे की हैसियत से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब भी किया। ये था हमारा जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक़ का दौर, जिसमें हमने उनके की गई मुख्तलिफ इस्लाहात के बारे में पढ़ा और जाना कि उन्होंने क्या क्या जो है काम किए थे और हमारे मुल्क की तरक्की के लिए उन्होंने कहाँ कहाँ पे जो है स्टेप उठाए थे। सबसे ज़्यादा जो उनका है अफ़गानिस्तान में रूस का जो इशू था, उस लिहाज से वो बहुत ज़्यादा जो हैं सराहे गए आलमी सतह पर। अब हम अगला नेक्स्ट चैप्टर अपने अगले प्रोग्राम में पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का सबक समझ आ गया होगा। शुक्रिया।